काठमांडू, नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने 5 साल बाद अपनी नागरिकता त्यागने के लिए एक नेपाली नागरिक से शादी करने वाली विदेशी महिला के फैसले का कड़ा विरोध किया है। विधेयक, जो संसद में विचाराधीन है, लंबे समय से लोक प्रशासन और सुशासन समिति में चर्चा में रहा है। हालांकि राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति की कमी के कारण वे आगे नहीं बढ़ सके। जेएसपी सांसद राम सहाय यादव ने कहा कि वे नागरिकता की पुरानी प्रणाली के पक्ष में थे। सीपीएन माओवादी द्वारा लिए गए निर्णय पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि मधेश के नागरिकों को स्टेटलेस बनाने का काम शुरू हो गया है। यादव ने कहा, हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें 7 साल बाद नागरिकता दी जाती है तो वे वित्तीय, सरकार और अन्य कार्यों और सेवाओं से वंचित रह जाएंगे। केवल मधेश के नागरिक ही नहीं बल्कि पूर्वी नेपाल और पश्चिमी नेपाल के साथ साथ ठकुरी, राणा और अन्य लोगों के भी भारत के साथ वैवाहिक संबंध रहे हैं। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि राष्ट्रपति कॉन्टे की सरकार को हराने के लिए उनकी संख्या पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने कहा कि वे मौजूदा व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ने पर अड़े हैं। नेपाल नागरिकता अधिनियम 2063 में संशोधन के लिए प्रस्तुत विधेयक में जसपा ने तर्क दिया है कि संविधान के अनुसार पुरानी व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था से और जटिलताएं पैदा होंगी। जसपा ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 11(6) के प्रावधान के अनुसार एक विदेशी महिला जिसने नेपाली नागरिक के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया है, अगर वह चाहे तो संघीय कानून के अनुसार नेपाल की दत्तक नागरिकता हासिल कर सकती है। नेपाल नागरिकता अधिनियम 2063 में यह भी कहा गया है कि जो विदेशी महिला नेपाली नागरिक से विवाहित है, उसे निर्धारित प्रारूप में नामित प्राधिकारी को आवेदन करना चाहिए यदि वह नेपाली नागरिकता प्राप्त करना चाहती है। इस तरह के आवेदन प्रस्तुत करते समय यह उल्लेख किया जाता है कि नेपाली नागरिक के साथ वैवाहिक संबंध का प्रमाण और विदेशी नागरिकता का त्याग करने का कार्य भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बहुत जल्दी से बंद कर दियो। Kathmandu, the ruling Communist Party of Nepal (CPN-UML), has strongly opposed the decision of a foreign woman marrying a Nepalese citizen to relinquish her citizenship after 5 years. The bill, which is under consideration in the parliament, has been under discussion in the Public Administration and Good Governance Committee for a long time. However, they could not move forward due to lack of consensus among the political parties. JSP MP Ram Sahai Yadav said that they were in favor of the old system of citizenship. Expressing objection to the decision taken by the CPN Maoist, he said that the work of making the citizens of Madhya stateless has started. Our religious and cultural ties have a long history, Yadav said. He said that if they are given citizenship after 7 years, they will be deprived of financial, government and other works and services. Not only the citizens of Madhya but also Eastern Nepal and Western Nepal as well as Thakuri, Rana and others have marital relations with India. However, he acknowledged that their numbers were not enough to defeat President Conte's government. He said that they are adamant on moving forward according to the existing system. In the bill submitted to amend the Nepal Citizenship Act 2063, Jasper has argued that the old system should be continued as per the constitution. Such an arrangement would create further complications, Jasper said. According to the provision of Article 11(6) of the Constitution, a foreign woman who has established a marital relationship with a Nepalese citizen can, if she so desires,
acquire the adopted citizenship of Nepal in accordance with the federal law. The Nepal Citizenship Act 2063 also states that a foreign woman who is married to a Nepali citizen should apply to the designated authority in the prescribed format if she wants to obtain Nepali citizenship. While submitting such application, it is mentioned that the proof of marital relationship with the Nepali citizen and the act of renouncing the foreign citizenship should also be submitted. काठमांडू सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ले नेपाली नागरिक संग विवाह करने विदेशी महिलाले 7 वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने गरेको निर्णय प्रति जनता समाजवादी पार्टी जिसपा ले कड़ा आपत्ति जनाएको छ। संसदमा विचाराधीन रहेको यो विधेयकमा लामो समयदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल हुँदै आएको छ तर राजनीतिक दलका बीचमा सहमति नहुँदा अगाडि बढ्न सकेको थिएन। जिसपा सांसद रामसहाय यादवले नागरिकता रहेको पुरानै व्यवस्थाको पक्षमा आफूहरू रहेको बताए। नेकपाले गरेको निर्णय प्रति आपत्ति जनाउँदै उनले मधेसका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने काम सुरु भएको बताए। हारो धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्धको इतिहास लामो छ। यादवले भने यस्ता निर्णयले जनप्रसङ्गको सम्बन्धमाथि नै प्रहार हुन्छ। 7 वर्षपछि नागरिकता दिँदा उनीहरू आर्थिक सरकारी लगायतका काम एवं सेवाबाट वञ्चित हुने उनले बताए। मधेसका नागरिकको मात्र नभई पूर्वी नेपाल र पश्चिमी नेपालका साथै यहाँका ठकुरी राणा लगायतको वैवाहिक सम्बन्ध भारतसँग छ तर उनीहरू आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेर आउँदा समेत नागरिक बनाउने खेल सुरु भएको उनले बताए। अहिले जुन व्यवस्था छ सोही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने विषयमा आफूहरू अडिग रहेको उनले बताए। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 मा संशोधन गर्नका लागि प्रस्तुत विधेयकमा संविधान अनुसार पुरानै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनुपर्ने तर्क जसपाको रहेको छ। यस्ता व्यवस्थाले थप जटिलता उत्पन्न हुने जसपाले जनाएको छ। संविधानको धारा 11(6) को व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 मा पनि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ। तेस्री निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पनि साथै पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।